الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسجد اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے۔ اللہ کو منانا چاہتے ہیں، مردوں کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی بہترین جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسجد جاتا ہے، جب عورت اپنے گھر کے مسجد میں جاتی ہے تو قدم رکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کے لیے نزدیک آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرتے ہیں ان کی، جو مسجدوں کو آتے ہیں، جو مسجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ تو اس کے چند آداب بھی ہیں اور اس کے چند احکام بھی ہیں، تو آپ سنیں گے انشاءاللہ ضرور، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں اندر جائیں تو دیکھیں کہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر میں ہیں، کوئی تلاوت میں ہیں، کوئی تسبیح وغیرہ میں ہیں، تو ان کو ہرگز سلام نہ کریں۔ ہاں کوئی خاموش بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں، فری ہوں، تو ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسجد میں نہیں، پہلے ہم گئے، کوئی نہیں ہے اندر، تو فوراً ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دوسرا کام کیا کرنا، فوراً مسجد میں جاتے ہی اگر مکروہ وقت نہیں ہے، سورج طلوع ہونے کے وقت یا سورج ڈوبنے کے وقت یا زوال کے وقت، ان تین اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات میں ہم مسجد میں گئے تو فوراً 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ تیسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں لینا بیچنا سب ہرگز نہ کریں۔ چوتھا کام یہ کہ ہتھیار وغیرہ کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، ایسی چیزیں ہرگز لے کر نہ جائیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کوئی چیز ہماری گم ہو گئی ہے، کوئی چیز ہماری گم گئی ہے تو ہم مسجد میں اس چیز کا اعلان ہرگز نہ کریں۔ اپنی ذات سے اکیلا اعلان کر لیں، لیکن مسجدوں میں اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان کرانا شریعت کہتی ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند نہ کریں، آہستہ سے کوئی بھی بات کرنا ہو، ضروری بات کرنا ہو، آہستہ سے کریں۔ ساتویں یہ کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہرگز نہ کریں، دنیاوی باتیں کوئی بھی ہو باہر کر لیں، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ آٹھویں چیز یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے ہرگز جھگڑا نہ کریں کہ میں یہیں بیٹھتا ہوں، میرے بیٹھنے کی جگہ یہی ہے، میرے کھڑنے کی جگہ یہی ہے، میں یہیں بیٹھتا ہوں، آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ ایسا نہیں لڑ نہیں سکتے۔ جہاں بھی جگہ ملے فوراً بیٹھ جائیں۔ نواں ادب یہ ہے کہ جہاں صف پوری ہو وہاں بیچ میں گھس کر ہرگز اس صف کو تنگ نہ کریں۔ اگر صف پوری ہو گئی ہے تو اس میں خامخواہ گھسنا کہ پہلی صف میں جگہ ملنے سے ثواب زیادہ ہے، اس لیے پہلی صف میں جگہ ہی نہیں ہے تو گھس گئے، سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا بھی ہرگز نہ کریں۔ 10واں یہ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے ہرگز نہ گزریں، اور پڑھنے والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ ایسی جگہ نمازیں نہ پڑھے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، کسی دیوار کے سہارے پر کھڑے ہو کر کیا کریں، نمازیں ادا کریں۔ 11واں ادب یہ ہے کہ اپنے بدن کے کسی بھی حصے سے ہرگز نہ کھیلے، کوئی داڑھی کے بالوں سے، کوئی سر کے بالوں سے، کوئی ٹوپی سے، کوئی شرٹ سے، کوئی ہاتھوں سے، پاؤں سے، کچھ نہ کچھ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو مسجدوں میں اپنے کسی بھی جسم کی کسی بھی عضو سے کھیلنا یہ جائز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ 12ویں یہ کہ انگلیوں کی نٹکیاں توڑنا، یعنی انگلیاں چٹخانا، انگلیوں کی نٹکیاں توڑنا، پاؤں کے، پیر کے، گڑوں کی باقاعدہ توڑتے رہتے ہیں کہ رکوع میں، سجدے میں جب بھی جائیں کٹ پٹ کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوں تو انگلیاں توڑ لے بیٹھتے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی غلط کام ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔
13वां काम यह है कि मस्जिद के दीवारों में, मस्जिद के दरख्तों में थूकना, नाक साफ करना, ये भी हरगिज ना करें। जो भी करना है वजू खाने में जाकर करें। मस्जिद के जिंदा खानों में भी बीड़ियाँ पीना, सिगरेटां पीना, तंबाकू खाना, पान वगैरह खाकर थूकना, ये भी मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। 14वीं चीज ये है कि मस्जिद को पाक साफ रखे। कोई बच्चा पेशाब कर ले रहा है, कोई बच्चा छोटा है जो गली में खेल रहा है, जिसके कपड़े पाक साफ नहीं, वैसे बच्चों को लेकर आना भी अच्छा नहीं है, गलत है, मस्जिद के अदब के खिलाफ है। इसी तरह मजनून यानी पागल को लेकर जाना भी अदब के खिलाफ है। 15वीं चीज ये है कि वहाँ बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें। अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ऐसे बहुत सारे अज़कार हैं, बैठे बैठे पढ़ा करें, वरना जिक्र में रहें, वरना नमाज पढ़ें, वरना कुरान की तिलावत करें, कुरान को देखें, कुछ ना कुछ दीनी काम जरूर करें, बेकार ना बैठें। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 15 आदाब लिखने के बाद फरमाया कि जिसने ये 15 काम कर लिए उसने मस्जिद का हक अदा कर दिया, और जो मस्जिद का हक अदा कर दिया मस्जिद उनके लिए हिफ्ज़ व अमान की जगह बन जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी आदाब हैं। इसी तरह चंद बातें बोलने की हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान में फ़ी बुयूतिन अज़ीन अल्लाह, बुयूतिन का लफ्ज़ यहाँ इशारा है, यहाँ इशारा दे रहा है कि बुयूतिन का लफ्ज़ आम है कुरान में। जिस तरह मस्जिदें इसमें दाखिल हैं, इसी तरह वो जगहें, वो ख़ास जगहें जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान सिखाया जाता है, दीन सिखाया जाता है, वाज़ो नसीहत की जाती है, ज़िक्र और शुग़ल किए जाते हैं, और उनके लिए चीज़ें जगहें बनाए भी गए हैं, तो वो भी मदारिस हैं, और जिसे कि मदारिस हैं, खानकाह हैं, मराकिज़ हैं, ये भी मस्जिदों के हुक्म में ही आते हैं। जिस तरह मस्जिद के 15 आदाब हैं, इसी तरह मदरसे के भी यही आदाब हैं, मराकिज़ के भी यही आदाब हैं, खानखाहों के भी यही आदाब हैं। इनका अदब व एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने मस्जिद में से नापाकी और गंदगी और तकलीफ देने वाली चीज़ों को बाहर निकाल दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए घर में, जन्नत में एक घर बना देते हैं। हदीस में आया है कि मस्जिद में जब कोई नजासत लाई जाए, जब कोई गंदगी लाई जाए, तो मस्जिद उससे इस तरह सिमटती है जिस जैसे इंसान की खाल आग से सिमटती है। जब आदमी की खाल जब आग में जलती है तो एकदम सुकट जाती है, मुदड़ जाती है। इसी तरह मस्जिद में कोई आदमी गंदगी लेकर आता है तो मस्जिद भी उससे क्या हो जाती है, अपने आप को सिमट लेती है, मतलब क्या, उससे अपने आप से दूर कर देती है। इसीलिए मस्जिदों को सब चीज़ों से पाक रखना है। इसी तरह हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमा दिया कि हम अपने घरों में भी मस्जिदें यानी नमाज पढ़ने की मखसूस जगहें बनाएं और उनको पाक साफ रखें। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गंदी चीज़ को, हर बदबूदार चीज़ को अपने पास लाने से, अपने साथ लाने से मना फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहसुन या प्याज खाकर बगैर मुंह साफ किए मस्जिद में आने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह सिगरेट, हुक्का, तंबाकू का पान वगैरह खाकर मस्जिद में जाना भी यही हुक्म में है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स के मुंह से भी लहसुन या प्याज की बदबू महसूस फरमाते, उनको मस्जिद से निकालकर बकली में भेज देते थे और फरमाते थे, जिनको प्याज खाना ही है, जिनको लहसुन खाना ही है, वो खूब पका कर खाएं, इसलिए कि इनसे उनकी बदबू मारी जाती है। इसी तरह बाज़ उलमा इस हदीस से ये भी इस्तेदलाल करते हैं, जिनके अंदर ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी की बदबू बाहर आ जाती है, तो ऐसा आदमी भी हरगिज़ मस्जिद ना आए। अगर आ रहा है तो लोग उसे बाहर निकाल दें, लोग उसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसे घर भेज दें। इसी तरह पसीने की बदबू है, कपड़ों में बदबू है, सिगरेट की मुंह में बदबू है, पान पराग की बदबू है, तंबाकू की बदबू है, ऐसे सब लोगों को साफ बोलकर मस्जिद से बाहर भेज दें। ऐसे लोगों को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि इससे अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की नूरानी मखलूक, फरिश्तों को तकलीफ पहुँचती है। तो इसी तरह मस्जिदों को बनाने में, मस्जिदों को तामीर करने में भी सुनिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबवी की तामीर साल की लकड़ी से शानदार बनाई थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में नक्श निगार और तामीरी खूबसूरती का भी काफ़ी एहतमाम करवाया था। और ये सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का ज़माना था
किसी ने उनके इस काम पर इनकार नहीं फरमाया। तो इससे बात मालूम हो रही है कि मस्जिदों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। और बाद के बादशाहों ने तो मस्जिदों की तामीरात में बड़े माल खर्च किए। वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने अपने खिलाफत के ज़माने में दिमश्क की जामिया मस्जिद की तामीर व तज़यीन पर पूरे मुल्क शाम की सालाना आमदनी से 3 गुना ज़्यादा माल खर्च किया था। उनकी बनाई हुई मस्जिद आज भी है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, अगर कोई आदमी अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए मस्जिद बनाता है तो बेकार है। हाँ, अगर कोई अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के घर की ताज़ीम की नीयत से कोई मस्जिद की शानदार तामीर बुलंद व मुस्तहकम और खूबसूरत बनाता है तो ये कोई इनकार नहीं है, ये कोई ममानत की चीज़ नहीं बल्कि ये सवाब की चीज़ है। इसलिए आजकल लोग ये कहते हैं कि मस्जिदों को बस साफ़ करने की जिम्मेदारी तो मुअज्जिन की है, मस्जिदों को साफ़ करने की जिम्मेदारी तो सिर्फ लोगों की है। ऐसा नहीं है, हर आदमी मस्जिद को पाक साफ रख सकता है, हर आदमी मस्जिद का ख्याल कर सकता है, हर आदमी मस्जिद के अंदर की गंदगी उठाकर फेंक सकता है। ये नहीं कि बस मस्जिद में जो काम वाले वही करते जाए, अगर काम वाले नहीं है तो मस्जिद ऐसे ही जाए, ऐसा नहीं है। और इसी तरह कोई आदमी मस्जिद बड़ी नहीं बना सकता, वो अपने एक ईंट की जगह भी दे दे या एक सीमेंट का मूटा दे दे, कुछ ना कुछ मस्जिद के लिए अपना पैसा खर्च करें। हाँ, सदक़े की नीयत से मस्जिद को देना जायज़ नहीं है, खुशी से मस्जिद के कामों में पैसा लगाना ये ज़रूरी है। देखो हज़रत वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने सालाना मुल्क शाम की जो सालाना आमदनी है, ऐसे 3 गुना ज़्यादा आमदनी से जामिया मस्जिद, दिमश्क की जामिया मस्जिद बनाई थी। तो कितना पैसा सिर्फ मस्जिद के लिए खर्च किया है, थोड़ा सोच कर देखो। इसलिए मस्जिदों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है। और साथ ही साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि खूबसूरत घर बनाने से घर का हक अदा नहीं होता, बल्कि घर में लोग भी रहना है। जब घर में कोई नहीं रहते तो वो घर सुनसान हो जाता है, शैतानों का महल बन जाता है। इसी तरह मस्जिदें अगर शानदार हैं लेकिन नमाजी नहीं है, नमाजियों से खाली है, तो वो मस्जिद अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। इसलिए जितनी खूबसूरत मसाजिद हैं उनमें उतना ही ज़्यादा दीन के कामों का एहतमाम करवाएं। मस्जिदों में किसी न किसी अल्लाह वालों को बुलाते रहें, अल्लाह वालों को बुलाते रहें, उनका वाज़ नसीहत कर रखते रहें, दीनी काम कराते रहें। इसी तरह मस्जिदों में नमाजियों के आने की किस तरह सहूलतें, क्या क्या सहूलतें, कैसे आ सकते हैं, उन सब सहूलतों का आप ख्याल करेंगे तो मस्जिदों में ज़रूर मुसल्ली बढ़ते जाएंगे, मस्जिदें आबाद होती जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है, सब काम करना ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको इन आदाब पर, इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।